ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 2027 میں منائے جانے والے گوداوری پشپکرالو کی تیاریوں کا لیا جائزہ اور کہا اس تہوار کو جنوبی ہند کے کمبھ میلے کی طرح شاندار پیمانے پر منایا جائے۔ جی ایس ٹی چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ حکومت چلا رہے ہیں یا سرکس؟ یاقوت پورہ مین ہول واقعے پر کے ٹی آر سخت برہم۔ کہا ریونت ریڈی نے میونسپل محکموں کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ دہلی فسادات کیس میں عمر خالد اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت سپریم کورٹ نے 19 ستمبر کو ہوگی۔ رکن اسمبلی محمد مبین کی جی ایچ ایم سی کمشنر سے ملاقات۔ بہادر پورے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوام کے مسائل پر لیا جائزہ۔ شہر میں بارش کے بعد عثمان ساگر کے 6 گیٹس کھول کر پانی کو کیا گیا ریلیز، جبکہ مسرم باغ اور دیا گڑائی کی روڈ کو کر دیا گیا بند۔ انحراف کی سیاست کی بنیاد بی آر ایس نے رکھی۔ تلنگانہ کے وزیر سیتاکا نے بی آر ایس کے سربراہ کے سی آر اور کے ٹی آر پر کی شدید تنقید۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 2027 میں منائے جانے والے گوداوری پشپکرالو کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور ہدایت دی ہے کہ اس تہوار کو جنوبی ہند کے کمبھ میلے کی طرح شاندار پیمانے پر منایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مستقل ڈھانچہ، غسل کی گاڑیوں کی ترقی، مندروں کی مرمت و توسیع اور لاکھوں یاتریوں کے لیے سہولیات پہلے سے تیار کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ باسرا سے بھدراتری تک مندروں اور گھاٹوں کے لیے علیحدہ پروجیکٹ رپورٹس تیار کریں، ٹریفک، پارکنگ، پانی اور قیام کی سہولت بہتر بنائیں اور مرکزی اسکیموں کا استعمال کریں۔ تقریباً 74 گھاٹوں پر انتظامات کی تجویز ہے اور ماہرین کی مدد سے اس بڑے مذہبی اجتماع کو کامیاب بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کمرشل ڈپارٹمنٹ ہر حال میں مقررہ ریونیو اہداف کے حصول کو یقینی بنائے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت دی ہے کہ جہاں ریونیو میں کمی ہو رہی ہے، ان شعبوں کی فوری نشاندہی کی جائے اور فیلڈ لیول پر بزنس ٹرانزیکشن کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب سے وہ ہر 15 دن بعد کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا خود جائزہ لیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے جی ایس ٹی چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی آمدنی کو محفوظ بنانے کے لیے مستقل نگرانی کا نظام اپنایا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ فیلڈ لیول مانیٹرنگ کو مضبوط کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی خصوصاً مصنوعی ذہانت اے سے مدد لی جائے اور ٹیکس وصولی کے مسائل کے حل کے لیے ایک جامع ایکشن پلان تیار کیا جائے۔ اجلاس میں پرنسپل سیکریٹری فائنانس، پرنسپل سیکریٹری کمرشل ٹیکس سمیت دیگر سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ یاقوت پورہ حلقے میں ایک مین ہول میں ایک بچی گرنے کے واقعے پر کے ٹی آر نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت چلا رہے ہیں یا سرکس۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی کی حکومت انتظامیہ کو رحم و کرم پر چھوڑ چکی ہے۔ یاقوت پورہ میں ایک ننھی بچی کھلے مین ہول میں گرنے کے واقعے پر کے ٹی آر نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ یہ حکومت چلا رہے ہیں یا سرکس۔ کے ٹی آر نے کہا سرکاری لاپرواہی کی وجہ سے ایک بچی کھلے مین ہول میں گر گئی، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جی ایچ ایم سی، ہائیڈرا اور واٹر بورڈ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ ریونت ریڈی نے میونسپل محکموں کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، محکموں میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے اور اس کا خمیازہ شہر کی عوام بھگت رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی فسادات کیس میں عمر خالد، شرجیل امام، گلفشا فاطمہ اور میران حیدر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ یہ تمام ملزمان فروری 2020 سے عدالتی حراست میں ہیں اور ان کی ضمانت کی درخواستیں نچلی عدالت اور ہائی کورٹ مسترد کر چکی ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ یہ فسادات کی سازش میں شامل تھے۔
ताहम मुल्जिमान का कहना है कि वो सिर्फ पुरअमन एहतजाज में शरीक थे और इन पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। इंसानी हकूक़ कारकुनों ने भी तवील हिरासत पर तशवीश ज़ाहिर की है। रियासत तेलंगाना में आज जुमा और हफ्ते के दिन शदीद बारिश की पेशकश की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में गर्द चमक और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। जुमा को निर्मल, निज़ामाबाद, सूर्यापेट, हैदराबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट, वनपर्ती, गदवाल, मेडचल और महबूबनगर में भारी बारिश के इम्कानात हैं। हफ्ते को भी कई अजला में भारी बारिश का इम्कान है, जिनमें जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, नलगुंडा और रंगारेड्डी शामिल है। जुमेरात को कई मुकामात पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना की वज़ीर सीतक्का ने बीआरएस के सदर केसीआर और वर्किंग सदर केटीआर पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रियासत में इनहराफ की सियासत की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि 2014 में तेलंगाना के क़याम के फ़ौरन बाद टीडीपी और कांग्रेस के अरकान असम्बली को तोड़कर अपनी जमात में शामिल किया गया और बाद में 2018 के असम्बली इंतखाबात के बाद 13 कांग्रेस एमएलएस को भी बीआरएस में शामिल कर लिया गया। सीतक्का ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव और कांग्रेस की सबिता इंदिरा रेड्डी को भी बीआरएस हुकूमत में वज़ीर बनाया गया और वो अपनी असल जमातों से मुस्तफ़ी हुए बगैर। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि आज बीआरएस अगर अपने अरकान के इनहराफ पर शोर मचा रही है तो ये सियासी मुनाफिकत के सिवा कुछ नहीं। అది పుట్టుకకు సంబంధించింది అంటే ఈయన తోటి బీఆర్ఎస్ లో తెలంగాణ వస్తే కొత్త సాంప్రదాయాలు కొత్త విధానాలని చెప్పి వచ్చిన తెల్లారే టీడీపీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను కాంగ్రెస్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను జైన్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ జైన్స్ అనుకున్నవయ్యా నేను అడుగుతున్నా। 2018లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి 13 మంది ఎమ్మెల్యేలను జైన్ చేసుకున్నావు। ఇవాళ వాళ్ళ పార్టీ నుంచి రాగానే ఇవాళ రకరకాలు మాట్లాడుతున్నారు। ఫస్ట్ నీ పార్టీలో జాయిన్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకు ఏ జీన్స్ ఉన్నాయని నువ్వు జాయిన్ చేసుకున్నావు, నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇవాళ కోర్టులో పోయి కొట్లాడుతున్నావు కదా, మరి ఆ రోజు వెంటనే తీసుకొని మంత్రులుగా కూడా చేసి ఏది నీ నీతి అంటున్నా కేటీఆర్, నీ నీతి నీ రీతి ఏదయ్యా? ఆ రోజు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ను సబితా ఇంద్రారెడ్డిని తీసుకొని ఎమ్మెల్యేలుగా తీసుకొని అదే గవర్నర్ దగ్గర తీసుకుపోయి అత్యంత నీచంగా హేయంగా నువ్వు మంత్రి పదవులు కూడా ఇచ్చి రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించిన నువ్వు ఇవాళ రాజ్యాంగ ధర్మాసనం కాడికి పోయేటువంటి అర్హత నీకుందా? ఫస్ట్ ఇప్పటికైనా నేను సవాల్ చేస్తున్నా, మా పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు నువ్వు అంటున్నావు కదా, దానికి పునాదిగా నువ్వు కొత్త రాష్ట్రంలో మొత్తం 2014లో 2018లో ఎవరున్నా కూడా పాపం సర్పంచులున్నా, ఎంపీటీసీలున్నా, జెడ్పీటీసీలున్నా, ఎమ్మెల్యేలున్నా, ఎంపీలున్నా అందరినీ భయపెట్టి బలవంతం చేసి రకరకాలుగా తీసుకొని అలాంటి మార్పిళ్లకు శ్రీకారం కొత్త తెలంగాణ చుట్టింది నువ్వు। నీకు రాజ్యాంగం మీద గౌరవం ఉంది, ఇన్నో పోయారంటే మరి నీ పార్టీలో ఉన్న ఒక్కరిని కూడా ఎందుకు నువ్వు రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఎలక్షన్కు రాలే? ఇవాళ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నావు। అదే కాకుండా ఇప్పటికీ మేము సవాల్ చేస్తున్నాం, మీ పార్టీలో ఇతర పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా గెలుచున్నారు, వాళ్ళని కూడా రాజీనామా చేయించు। ఆ రోజు మా పార్టీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గాని, సుధీర్ రెడ్డి గాని, లేకుంటే ఇతర టీడీపీ నుంచి వచ్చిన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గాని, మళ్ళా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కదా, ఆ రోజు వాళ్ళు రాజీనామా చేయకుండా మీ పార్టీలకు వచ్చారు కదా, మీ పార్టీలకు ఈ రోజు రాజీనామా చేయించి అప్పుడు మా దాంట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు అడిగితే జనం హర్షిస్తారు। కానీ నీకో నీతి మందికో నీతి అనడం ఇది ఎవరు కూడా హర్షించరు। కాబట్టి ఆ యూట్యూబ్లు పెట్టుకొని చూపించుకున్నంత మాత్రాన ఎవరు ఏదో పేడి ఆర్టిస్టులతో మాట్లాడిస్తే అది కాదు। కాబట్టి ప్రజలకు తెలుసు నువ్వేం మాట్లాడినా, నువ్వు 10 ఏళ్ళ అధికారంలో నువ్వేం చేసినావు పబ్లిక్ తెలుసు। కాబట్టి అది మర్చిపోయి ఇతరులను ప్రశ్నించే నైతిక అర్హత నీకు లేదు। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी कमिश्नर आरवी करनान IAS से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हल्के बहादुरपुरा में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तफसीली जायज़ा लिया। मोहम्मद मुबीन ने कमिश्नर को याददाश्त पेश करते हुए सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज निज़ाम की बेहतरी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी में तेज़ी लाने का मुतालबा किया।
शहर हैदराबाद में बारिशों के बाद उस्मान सागर के 6 गेट्स खोल दिए गए और 2600 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। पानी के बहाव के पेश नज़र मुसरम बाग पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को नागौल के पुल की तरफ मोड़ दिया गया। पुराना पुल से जियागुड़ा कमेला रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई और गाड़ियों को कारवान जियागुड़ा और गोपी होटल रूट पर मोड़ा जा रहा है। आवाम से अपील की गई है कि मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें और एहतियात से सफ़र करें। సార్ 6 గేట్లు 3 ఫీట్లు. మా మేనమామ हमारे मामा शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़े शेरीगुड़ा में HP पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से एक ब्रेज़ा कार ख़राब होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात शहरी महेश ने मज़कूरा पंप से पेट्रोल भरवाया था, लेकिन अगले दिन इसकी गाड़ी अचानक ख़राब हो गई। मैकेनिक ने मुआयना करके बताया कि इंजन में पानी की मिलावट से इंजन को नुकसान पहुँचा। मुतासर अफराद ने बोतल में पेट्रोल का नमूना दिखाकर पेट्रोल पंप अमले को भी आगाह किया। मुकामी अफराद का कहना है कि इस पंप पर यह 5वां वाक़या है जिससे अवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। వాటర్ అయితే అది మండదు కదన్న ఏం చెప్పకాగరా వాటర్ అయితే మనం ఇప్పుడు మొత్తం పెట్టిన నేను చెయ్యి మొత్తం పెట్టిన చెయ్యి వాటర్ అయిందనుకో మన చెయ్యి ఆరదు. మేము కావాలంటే ఇప్పుడు ఏంది తీసుకొని సైడ్ పోయి మంట పెడతాం. మంట ఎందుకు మండుతో చెప్తా. ఆల్రెడీ సగం పెట్రోల్ ఉంది, సగం వాటర్ ఉన్నాయి. పెట్రోల్ ఉన్న याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने शेख फैज़ कमान की सड़क की तोसी से मुतासरा जायदाद मालिकान में 30 मुआवजा चेक्स तकसीम किए। ये तकरीब आफरीन पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुई, जहां जुमला 13,16,82,091 रुपये की रकम जारी की गई। इस मौके पर मजलिस के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग, डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अराकीन व मुकामी क़ायदीन शरीक रहे। रुकन असम्बली ने कहा कि बाकी चेक्स भी जल्द दिए जाएंगे और सड़क के काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे ताकि आवाम को बेहतर सहूलतें फ़राहम हों। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी शेख फैज़ की कमान में एक ज़माने से रोड वाइंडिंग का जो काम पेंडिंग था, नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और उनकी निगरानी के अंदर जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब ने इस काम की पैरवी की और अल्लाह के फजल व करम से आज 30 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए यहाँ पे, जिसकी प्रॉपर्टी इफ़ेक्ट हो रही थी उनके लिए 30 चेक दिए गए हैं। आफरीन पैलेस में प्रोग्राम रखा गया था टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के मुकामी कारपोरेटर अलमदार वालेजाई साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर सारे के सारे आज के प्रोग्राम में मौजूद थे। 30 चेक की लागत हो रही है 13,16,82,051 रुपये 51 रुपये 13,16,82,091 रुपीज़ आज के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। इंशाल्लाह माह बाकी भी जो चेक्स है वो भी जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और रोड वाइंडिंग का काम
जितना हो सके जल्द से जल्द मुकम्मल करा के यहाँ की आवाम को जो दुश्वारी हो रही थी उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। मैं तमाम आवाम का और इस बस्ती के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने वॉलंटरली आगे बढ़ के आके एक अच्छे काज के लिए जो रोड वाइड हो रही थी, एक ज़माने से यहाँ पर जो लोगों को तकलीफ़ हो रही थी उसके लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस प्रोग्राम में जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीराबाद में मरकज़ी मिलाद कमेटी ने ऐलान किया कि मिलाद जुलूस हस्ब रिवायत 14 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे ईदगाह मैदान से निकाला जाएगा। जुलूस की सदारत सैयद शाह मुहिबुद्दीन क़ादरी उर्फ़ बाबा साहब करेंगे और हाफ़िज़ सैयद शाह अफसर पाशा क़ादरी साहब झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कमेटी के ज़िम्मेदारान ने आज ज़हीराबाद सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश किए और जलसा व जुलूस की बाकायदा इजाज़त हासिल की और इस मौके पर पुलिस ने अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। सदर मिलाद कमेटी ने कहा कि जुलूस में बाइक्स और डीजे को सख्त ममनू करार दिया गया और शरंगेज़ नारे लगाने पर भी सख्त पाबंदी आयद की गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आमतुल मुस्लिमीन को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक। ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी है और इसी के ज़िमन में 14 सितंबर 2025 और इतवार का दिन बरोज़ जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाएगा जो ईदगाह से दरगाह से 10 बजे निकाला जाएगा। और इस जुलूस में बाइक का लाना ममनू है और तमाम गैर शरई हरकत करना ममनू है। और मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि इस जुलूस मोहम्मदी में शिरकत फरमाकर कमेटी का और पुलिस का ताउन करें और हमारे माहौल को बिगड़ने से बचाएं। और तमाम से ख्वाहिश करता हूं कि पुरअमन तरीक़े से इस जुलूस मोहम्मदी को निकालें और नात सलात व सलाम के नजराने पढ़ते हुए निकालें। और डीजे भी ममनू है और बाइक भी ममनू है। जो हजरात बाइक लाएंगे वो उन्हीं के ज़िम्मे रहेगी और हम उसके ज़िम्मे में नहीं रहेंगे। अगर पुलिस वाले अगर चाबी निकालें तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। इंशाअल्लाह मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूं कि पुरज़ोर तरीक़े से पुरअमन तरीक़े से हर तरीक़े से आका की मिलाद मनाने आप तमाम आशिक़ान रसूल को मदऊ करते हैं। हम अहले सुन्नतुल जमात ज़हीराबाद की कमेटी की तरफ से मिलाद कमेटी की तरफ से आप तमाम शिरकत फरमाएँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुधोल शहर में एजाज़ुद्दीन साबिक़ा सदर नशीन मंडल परिषद मुधोल मंडल व सदर मदरसा मोहम्मदिया तालीमुल कुरान मुधोल की ज़ेर सरपरस्ती और जमीयतुल उलमा मुधोल मंडल की ज़ेर निगरानी में दस्तावेज़ात रहनुमाई सेंटर का क़याम बमुक़ाम क़दीम बस स्टैंड मुधोल पर अमल में लाया गया। इस इफ्तिताई तक़रीब में अफरोज़ ख़ान, मुफ्ती रईस क़ासमी, मोहम्मद इमरान ख़तीब व दीगर ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। दस्तावेज़ात रहनुमाई सेंटर पर पैदाइश का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मुफ्त नोटरी, मुफ्त मैरिज सर्टिफिकेट, ऑनलाइन खिदमात और दीगर सर्टिफिकेट्स के लिए मुफ्त रहनुमाई की सहूलत फराहम की जा रही है, जिसे मुधोल की आवाम को इस्तेफ़ादा करने की अपील की गई। ये जो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हिंदुस्तान की शहरत के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को ज़रूरत पड़ रही है और ये ज़रूरत इतनी ज़रूरी है कि इंसान को जिंदा रहना है तो सांस लेना, सांस कितनी ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट आज हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए ज़रूरी समझना अपने लिए अक्लमंदी की अलामत है। इसीलिए हमारे करीबी जो लोग हैं, सबसे पहले हमारे अजहर साहब जो हमारे रिश्ते में भाई भी है, इन्होंने जिक्र किया। उसके बाद हमारे करीबी लोगों से मशवरा हुआ कि भाई ये काम करना अपने गांव के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी का मसला है। ये लोग मेरे से जिक्र करें, इसके लिए अखराजात का भी मसला है। तो मैंने अपनी तरफ से ये कबूल किया कि हमारे मुधोल की आवाम के लिए, ख़ासकर मुसलमान भाइयों के लिए मेरे से जितना हो सकता, खासकर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जितने भी अखराजात होंगे, जितने भी खर्च होंगे,
इंशाल्लाह मैं अपने जेब से करके अपने लोगों को सर्टिफिकेट दिलाने की कोशिश करूँगा और इसमें सभी लोगों का ताउन ज़रूरी है। जैसा कि अब हमारे अफरोज खान साहब है, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, और साहब है, जो भी है, ये सर्टिफिकेट खाली यहाँ पर एक टाइप करके बाहर प्रिंटर से निकालने से सर्टिफिकेट इशू होने वाला नहीं है। इसके लिए ऑफिशियल लेवल में भी नुमाइंदगी करना पड़ता है और आजकल की नुमाइंदगी इस नमूने की है, जाकर वहाँ पर मिलता मांगी रिक्वेस्ट का मामला नहीं है। उसके लिए जाकर अपने को अपने हक के लिए लड़ना है और लड़ने के लिए सबका सपोर्ट, सबका साथ, सबकी हिम्मत ज़रूरी है, चाहे वो किसी के भी लिए, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 2027 में मनाए जाने वाले गोदावरी पुष्पकरालू की तैयारियों का लिया जायजा और कहा इस त्यौहार को जनूबी हिंद के कुंभ मेले की तरह शानदार पैमाने पर मनाया जाए। जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ इजलास। हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस। याकुतपुरा मेनहोल वाक़े पर केटीआर सख्त बरहम। कहा रेवंत रेड्डी ने म्युनिसिपल महकमों को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। दहली फसादात केस में उमर खालिद और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में 19 सितंबर को होगी। रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन की जीएचएमसी कमिश्नर से मुलाकात। बहादुरपुरे में जारी तरक्याती मंसूबों और अवाम के मसाइल पर लिया जायजा। शहर में बारिश के बाद उस्मान सागर के 6 गेट्स खोलकर पानी को किया गया रिलीज, जबकि मुसरमबाग और जियागुड़ा की रोड को कर दिया गया बंद। इन्हिराफ की सियासत की बुनियाद बीआरएस ने रखी। तेलंगाना के वजीर सीताका ने बीआरएस के सरबराह केसीआर और केटीआर पर की शदीद तनकीद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।